استقبال ہے آپ سبھی کا ہمارے یوٹیوب چینل سیکھنا سکھانا میں۔ آج کی ویڈیو میں ہم محمد حسن سے متعلق اور ان کا ڈرامہ ضحاک اور ڈرامے کا خلاصہ کرداروں کی پہچان سے متعلق اہم معلومات آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں سپورٹ کیجیے اور ویڈیو کو لائک کیجیے اور اسے شیئر ضرور کریں۔ تو چلیے جلدی سے شروع کرتے ہیں۔ پہلا پوائنٹ، نام محمد حسن 20 اگست 1926 عیسوی کو مراد آباد میں پیدا ہوئے۔ دوسرا پوائنٹ، محمد حسن کا انتقال 24 اپریل 2010 عیسوی کو دہلی میں ہوا۔ تیسرا پوائنٹ، محمد حسن نے ایم اے اردو 1946 عیسوی میں مکمل کیا تھا۔ چوتھا پوائنٹ، محمد حسن نے مسعود حسن رضوی کی نگرانی میں لکھنؤ کی ادبی لسانی خدمات پر پی ایچ ڈی کی ڈگری لکھنؤ یونیورسٹی سے 1952 عیسوی میں حاصل کی۔ پانچواں پوائنٹ، محمد حسن نے عصری ادب کے نام سے رسالہ جنوری 1970 عیسوی سے نکالنا شروع کیا تھا، جو 23 سالوں میں یعنی 1993 عیسوی تک نکلتا رہا۔ چھٹا پوائنٹ، محمد حسن علی گڑھ کی لیکچرشپ کے دوران اپنی ایک طالبہ روشن آرا سے 1958 عیسوی میں شادی کی تھی۔ ساتواں پوائنٹ، محمد حسن نے اپنا تخلیقی سفر 1939 عیسوی میں افسانہ اور ساتھ ہی ڈرامہ نگاری سے شروع کیا تھا۔ آٹھواں پوائنٹ، محمد حسن نے علی گڑھ میں قیام کے دوران اردو ڈرامے کو اسٹیج سے قریب لانے کے لیے اردو تھیٹر گروپ کے نام سے ایک انجمن قائم کی تھی۔ نواں پوائنٹ، محمد حسن معروف جریدہ پانیر کے مدیر رہے اور محمد حسن نے جریدہ عصری ادب شائع کیا تھا۔ 10واں پوائنٹ، محمد حسن نے جواہر لال نہرو فیلوشپ کے تحت 19ویں صدی میں شمالی ہند کے ادب کے فکری اسالیب کے موضوع پر کام کیا تھا۔ 11واں پوائنٹ، محمد حسن کو آندھرا پردیش اردو اکیڈمی نے ڈرامہ کوہرے کا چاند کے لیے ڈرامہ ایوارڈ سے نوازا تھا۔ 12واں پوائنٹ، محمد حسن کو غالب انسٹی ٹیوٹ نے 1975 عیسوی میں ہم سب غالب ڈرامہ ایوارڈ سے نوازا تھا۔ 13واں پوائنٹ، محمد حسن کو 1980 عیسوی میں دلی ساہتیہ پریشد ایوارڈ سے نوازا گیا تھا۔ 14واں پوائنٹ، محمد حسن کو یو پی اردو اکیڈمی ایوارڈ سے 1946 عیسوی میں نوازا گیا تھا۔ 15واں پوائنٹ، محمد حسن کو حیدرآباد ساہتیہ اکیڈمی نے ڈرامہ ضحاک کے لیے ایوارڈ 1987 عیسوی میں دیا تھا۔ 15واں پوائنٹ، محمد حسن کو 1988 عیسوی کے مہاراشٹر اردو اکیڈمی کا اعلیٰ ترین ایوارڈ سے نوازا گیا تھا۔ 16واں پوائنٹ، محمد حسن کو بنگلہ مصنفین کی توسط سے امرتا ایوارڈ 1988 عیسوی، دہلی اردو اکیڈمی ایوارڈ برائے تحقیق و تنقید 1991 عیسوی، مدھیہ پردیش حکومت کی جانب سے اقبال سمان سے 2001 عیسوی، دہلی اردو اکیڈمی کی جانب سے کل ہند بہادر شاہ ظفر ایوارڈ سے 1999 عیسوی میں نوازا گیا۔ 17واں پوائنٹ، محمد حسن کو مولانا امتیاز علی خاں عرشی صدی تقریبات کے موقع پر میموریل ایوارڈ سے 2005 عیسوی میں نوازا گیا تھا۔ محمد حسن کے ڈرامے کے مجموعے: پیسہ اور پرچھائی 1955، میرے اسٹیج ڈرامے 1961 عیسوی، کوہرے کا چاند غالب کی زندگی پر طویل ڈرامہ 1969 عیسوی، تماشا اور تماشائی، یہ بھی غالب کی زندگی پر طویل ڈرامہ ہے 1975 عیسوی میں، مور پنکھی اور دوسرے ڈرامے 1975 عیسوی میں، ڈرامہ ضحاک طویل ڈرامہ ہے 1980 میں پیش ہوا، عمر خیام زنجیر نغمہ شعری مجموعہ 1986 عیسوی میں پیش ہوا، خون کے دھبے 2011۔ اس کے علاوہ محمد حسن کے ڈرامے ہیں پیسہ اور پرچھائی، سرخ پردے، سونے کی زنجیریں، نذیر اکبر آبادی، نقش فریادی، اکبر اعظم، انسپکٹر جنرل، معمار اعظم، سچ کا زہر، دارالشکوہ، کوہرے کا چاند، مٹی جاگتی ہے، تماشا اور تماشائی، ضحاک، عمر خیام، قاتلوں کے درمیان، ریہرسل، محل سرا، میر تقی میر، موم کی بت، فٹ پاتھ کے شہزادے، گوشائے عافیت، شکست، مور پنکھی
और मौसरी के फूल। इसके अलावा मोहम्मद हसन के अफसाने हैं वार फंड पहला अफसाना, इलाज, मस्त कलंदर, चित्रा, मुरझाए हुए फूल, तारीके गोशे। इसके अलावा एक नावल है गमे दिल वहशते दिल, एक शेरी मजमुआ जंजीर का नगमा। ड्रामा ज़ोहाक से मुतालिक अहम मालूमात। पहला पॉइंट, ज़ोहाक इंसानों के भेजों पर जिंदा रहने वाले शहंशाह की कहानी है। दूसरा पॉइंट, इमरजेंसी के दौरान लिखा गया ड्रामा ज़ोहाक का प्लाट शाहनामा फिरदौसी से उखज़ किया गया है, जैसा आगा हश्र के ड्रामा रुस्तम व सहराब का प्लाट शाहनामा फिरदौसी से माखूज है। तीसरा पॉइंट, ज़ोहाक 6 मनाजिर पर मुश्तमिल नीम तारीखी ड्रामा है। इसमें अहम किरदार 10 हैं। इसके अलावा सिपाही, रक्कासाएं, चौबदार और कैदी हैं। चौथा पॉइंट, ज़ोहाक के अहम किरदार, ज़ोहाक जो फौजी है, उसकी शरीक हयात नौशबा रक्कासा है, फरीदू जो कि किसान का लड़का है। पांचवा पॉइंट, ज़ोहाक पहली बार असरी अदब शुमारा 27-28 बाबत जनवरी या अप्रैल 1977 ईस्वी में शाये हुआ। छठा पॉइंट, ज़ोहाक को विजय शंकर चौधरी ने श्री राम सेंटर के स्टेज पर पेश किया था। सातवां पॉइंट, पहली बार ज़ोहाक की इशाअत किताबी शक्ल में 1980 ईस्वी में हुई। आठवां पॉइंट, ज़ोहाक को ज्ञानचंद जैन ने तमसील करार दिया है। नवा पॉइंट, ज़ोहाक के पहले मंजर की इब्तिदा कोर्स से होती है, जो माजी के वाक़यात के साथ हाल के मंजरनामा की तरफ इशारा भी करता है और इसकी तहवा भी करता है। दूसरा पॉइंट, दूसरे मंजर में ज़ोहाक के उमरा, वज़रा और मुल्क के दानिश्वर इंसानी मुग़ज़ के हिस्सों के लिए आपस में तबादला ख्याल और तरीक़ा कार पर गौर व फिक्र करते हैं। तीसरे मंजर में निस्फ शब का मंजर सामने आता है। ज़ोहाक शब खानी के कमरे में अपनी मलका नौशबा से महू गुफ्तगू है और बड़े दुख के साथ अपने कर्ब और अपनी अजियत का इजहार करता है। चौथे मंजर में फरीदू नौशबा से महू गुफ्तगू है, इसके होंठों से खून जारी है। नौशबा उन सुर्ख होंठों को चूमकर अपनी जेनसी प्यास बुझाना चाहती है, लेकिन फरीदू उसके लिए तैयार नहीं है। पांचवी मंजर में मुल्क के दानिश्वर को तह खाने में महू गुफ्तगू दिखाया गया है। फरीदू के कैद खाने से फरार होने की खबर उन्हें मिल चुकी है। छठे मंजर में तमाम दानिश्वरों, माहिरीन फन और नौशबा, जिसे फरीदू के फरार होने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया है, को ज़ोहाक के सामने पेश किया जाता है। ड्रामा ज़ोहाक का खुलासा। ज़ोहाक ईरान का एक जालिम बादशाह है जिसने शहंशाह जमशेद की हुकूमत का तख्त उलटकर ईरान पर कब्जा जमा लिया था। ज़ोहाक जो कि एक फौजी अफसर था, बादशाह जमशेद के खिलाफ बगावत कर देता है और उसे आरे से चिरवा देता है और खुद बादशाह बन जाता है। इस जंग में वो शैतानों से भी मदद लेता है। फतह मिलने के बाद शैतान उसके शानों को चूमता है, जिसके असर से उसके शानों पर सांप उग आते हैं और वो डसते रहते हैं। ज़ोहाक अपने शानों पर उग आए 2 सांपों की खुराक न मिलने से परेशान है। जब सांपों को उनकी खुराक नहीं मिलती, तब दोनों सांप ज़ोहाक के शानों को जोर से डसते हैं। वजीर और दरबारी ज़ोहाक की इस कैफियत और मुसीबत का कोई हल या इलाज तलाश करने से कासिर हैं। दरबार में एक पागल बूढ़ा नमूदार होता है और वो ज़ोहाक से उसकी रूह का सौदा करता है और वो इलाज के तौर पर बताता है कि अगर ज़ोहाक को जिंदा रहना है तो सांपों को रोजाना इंसानी खोपड़ी के ताज़ा भेजे खिलाने होंगे। ज़ोहाक जब ये बातें अपने वजीर और दरबारियों को बताता है तो सब डर की वजह से सहम जाते हैं। दरबारियों के सामने ज़ोहाक अपनी तलवार से 2 नौकरों को कत्ल कर उनके भेजों को सांप को खिला देता है। ज़ोहाक को जिंदा रखने के लिए राहिब, शायर, उस्ताद, रक्कासा, जज वगैरह सब उसकी मर्जी से काम करते हैं ताकि उनकी जान महफूज रहे। ये तमाम लोग आवाम को इस बात के लिए तैयार करते हैं कि तुम्हारी जान और माल सब हुकूमत का है। तलबा और अवाम की इसी नहज पर तरबियत होती है। हुक्म की खिलाफ वर्जी करना या उसके बारे में सोचना हुकूमत से गद्दारी है और वक्त आने पर तुम्हें अपने शहंशाह के एक हुक्म पर अपनी जानों का नजराना पेश करना होगा। लोगों के दिमागों में शहंशाह की अजमत का रौब बैठाकर रोजाना बेकसूर लोगों के भेजे ज़ोहाक के शानों पर बैठे सांपों को खिलाए जाते हैं। लेकिन फरीदू जो एक किसान है,
जब शहंशाह के सामने 10 कैदियों के हमरा कत्ल के वास्ते लाया जाता है तो वो उस नाम निहाद अजीम शहंशाह के हुक्म की नाफरमानी करके बगावत का ऐलान करता है, जिसकी पादाश में उसे जिंदान में डाल दिया जाता है। जिंदान में फरीदू की तरबियत का जिम्मा ज़ोहाक की बीवी नौशबा अपने ऊपर लेती है। दरअसल नौशबा भी किसान की बेटी फातिमा थी, जिसे ज़ोहाक ने जबरदस्ती अपनी बीवी नौशबा बना लिया था। नौशबा फरीदू के लबों से टपकते हुए खून से अपनी जिनसी आसूदगी हासिल करना चाहती है। वो फरीदू को जिंदान में समझाती है कि वो उसके साथ नाजायज जिनसी ताल्लुकात बनाए, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। फरीदू किसी तरह नौशबा से अपने आप को बचाता है और सोचने के लिए एक रात की मोहलत मांग लेता है। नौशबा के हुक्म पर जिंदान और महल तक के रास्तों से पहरेदार हटा लिए जाते हैं। फरीदू मौका पाकर जिंदान से फरार हो जाता है। जब यह बात ज़ुहाक को मालूम होती है तो महल में कोहराम मच जाता है। शायर, जज, रक्कासा, राहिब और उस्ताद फरीदू के इस अमल पर खुश होते हैं, लेकिन फौजी अफसर नौशबा के साथ इन तमाम लोगों को गिरफ्तार कर ज़ुहाक के सामने पेश करता है। ज़ुहाक इनके लबों पर लगे हुए टाँकों को हटाने का इशारा करता है। तभी फरीदू महल में दाखिल होकर गिरफ्तार शुदा लोगों की जान की बख्शिश मांगता है, लेकिन इसी दौरान अवाम की भीड़ महल के सदर दरवाजे को तोड़कर अंदर दाखिल हो जाती है। फरीदू अवाम से मुखातिब होकर कहता है कि अपने शहंशाह को देख लो, जिसके शानों पर 2 सांप हैं और जिनकी खुराक इंसानी भेजे हैं। ज़ुहाक की हालत को देखकर अवाम मुश्तइल हो जाती है और महल में हंगामा बर्पा हो जाता है। फरीदू नौशबा, उस्ताद, रक्कासा, जज, राहिब और शायर को आजाद कर देता है। फरीदू जैसे ही ज़ुहाक को खत्म करने के इरादे से आगे बढ़ता है, बूढ़ा शैतान हाजिर होकर उससे कहता है कि ज़ुहाक की रूह मेरी है और इसका जिस्म सांपों की मिल्कियत है। बूढ़ा शैतान आखिर में फरीदू से कहता है कि भूलते हो नादानो, सदियों की लड़ाई को लम्हों में खत्म करना चाहते हो। इसके जवाब में फरीदू कहता है, याद रख बूढ़े, जब भी जहां भी ज़ुहाक सर उठाएगा, फरीदू का या उसके किसी मजलूम भाई या बहन का हाथ भी जरूर उठेगा। और फरीदू कैदियों के टाके काटने का हुक्म देने के साथ नए ज़ुहाक की तलाश में निकल जाता है। इस तरह ड्रामा ज़ुहाक इख्तिताम पजीर होता है। तो ये थी ड्रामा ज़ुहाक का खुलासा। किरदारों की पहचान। ज़ुहाक एक जालिम शहंशाह जो एक साजिश से जमशेद को मारकर उसके ताजो तख्त पर कब्जा लेता है, और इस साजिश में उसका साथी शैतान जो फतेह हासिल करने के बाद ज़ुहाक के दोनों शानों को चूमता है, जिसकी वजह से ज़ुहाक के शानों पर सांप उगाते हैं। नौशबा ज़ुहाक की मलका, लेकिन उसका असल नाम फातिमा होता है और ये मजदूर किसान की लड़की होती है। बचपन में सिपाही इसके माँ भाई को मारकर फातिमा को उठा ले आते हैं। फरीदू सेस्तान का रहने वाला एक मजदूर किसान का बेटा, इसके बाप का नाम कावा है। वजीर ज़ुहाक का वजीर है। बूढ़ा जो ज़ुहाक को इंसानी भेजा खाने का मशवरा और ज़ुहाक की रूह का सौदा करता है। फौजी अफसर, राहिब, उस्ताद, शायर, रक्कासा, जज, ये सब मिलकर मौत का पाठ पढ़ाते और मौत को हसीन बताते, ताकि लोग खुद ही अपनी खुशी से जान दे दे और इस तरह ज़ुहाक के सांपों को ताज़ा इंसानी भेजा मिलता रहे। इसके अलावा कैदी, दरबारी, रक्कासाए और सिपाही हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।